Bismillahirrahmanirrahim. We are going to work on the PTE's essay today. And we talk about the PTE essay. तो याद रखिए PTE में जो नई स्कीम है उसके मुताबिक हमारे PTE के एग्जाम में there is only one question of essay, but marks जो हैं उनको खासा बदला दिया गया है. आपके जो राइटिंग के एग्जाम के क्वेश्चन हैं पहले essay के, these were from 1 to 2. But now in the newer scheme, one thing is clear that there will be only one question in exam. मैंने यहाँ पे दो आपके लिए लिख के छोड़ा है ताकि मैं इस बात को explain कर सकूँ. So this was according to the older scheme and it was before 7th of August 2025. उससे पहले की बात है. So essay that was having the criteria of 1 to 2 questions and now been converted into only a single question in exam. नंबर 1. नंबर 2, हमारी जो ओल्ड स्कीम थी उसमें एसे के टोटल 11 मार्क्स थे आपके राइटिंग के एग्जाम के वास्ते आउट ऑफ टोटल 90 मार्क्स ऑफ द राइटिंग एग्जाम. राइटिंग के एग्जाम के पीटीई राइटिंग एग्जाम के टोटल 90 मार्क्स हैं. उन 90 में से 11 मार्क्स जो थे वो एसे कंट्रीब्यूट करता था एंड बाय दिस कंट्रीब्यूशन एसे वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एट ऑल. ये किसी भी तरह से एक इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं इस हवाले से था कि आपके टोटल जो 20 क्वेश्चंस हैं पीटीई में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के मिला के उन 20 क्वेश्चंस में से बाय मार्क्स ये 11th नंबर या 12th नंबर पे था. सो 12th हाईएस्ट मार्क्स का ये क्वेश्चन था. और जब ऊपर से 12th हाईएस्ट मार्क्स की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है देयर वर अबाउट 11 क्वेश्चंस हु वर सीनियर इन द नंबर्स देन दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वाज हैविंग नो वैल्यू एट ऑल. लोग टेम्पलेट से याद कर लिया करते थे और एग्जाम में नंबर्स ना भी आए तो व्हाट दे विल लूज ओनली 11 मार्क्स. 2 3 4 आ जाएंगे सो व्हाट दे विल लूज 5 6 मार्क्स. इन न्यू स्कीम आफ्टर 2025 7th of August this question has been given an outstanding weightage. And what that outstanding weightage is, जहां पे इसके टोटल 11 मार्क्स थे वहां पे the marks have been increased from 11 to minimum 25. So it is more than double than before. So now one essay that will come in exam will be of 25 marks out of the total 90 marks of the writing exam, and all of these 25 marks will go toward your writing exam. कहीं और कोई contribution नहीं हो रही. ये 25 से 25 मार्क्स सारे के सारे कहाँ पे ऐड हो रहे हैं आपके writing exam में. So in this way we talk about, when we talk about the essays, the essay is a question that is now carrying 25 marks out of 25 out of 90 total 25 marks and the में से, and this question is now subjected for human examiner. अब इंसानी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेक करता है. सो जहां पे एआई जज था वहां पे अब इंसानी एग्जामिनर भी आ गया. along with that marks have been increased to more than double in the exam. So question is a very beautiful question now. A smart question, a smart description, it's a very good thing to practice and a very good thing to prepare as well. So I'm moving ahead. अब मैं इसके ऊपर एक एक चीज लिखूंगा. You people will not write anything. I will write everything for you in the class. आप लोग सिर्फ concentrate करेंगे पढ़ने पर, आप सिर्फ समझने पर concentrate करेंगे, लिखने पर नहीं. Sooner the class overs, I will send everybody. मैं सब लोगों को ये भेज दूंगा जो मैंने आपके लिए लिखा है. So essay writing. So सर ने क्या समझाया? Number 1, there will be total question in exam, 1 question in exam. एग्जाम में सिर्फ एक सवाल होगा जिसका ताल्लुक होगा आपके essay से, and the marks for essay will be 25 and all marks will go towards your third. Number 3, all marks means मैं बात कर रहा हूँ 25 की, they will be added. All marks 25 जो है these will be added to the writing exam. All 25 marks will be added to writing exam. ये सारे के सारे जो हैं वो writing exam को ही जाएंगे. So number 3, there are total, number 4, there are total 4 types of essays, 4 types of essay topics. मैं essays की बात नहीं कर रहा, मैं essay topics की बात कर रहा हूँ. एक बात याद रखिएगा. If we talk about the types of essays, that is something different in the topics of essays.
मैं पहले टॉपिक्स पे बात कर लूँ, फिर मैं उसके बाद टाइप्स भी बात करूंगा, बिकॉज इन एग्जामिनेशन हमें पढ़ाने वाले बताते हैं 4 तरह का ऐसे आएगा। 4 तरह का नहीं है, वो 4 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक एग्जाम में आता है। तरह का मतलब होता है टाइप। दीज आर नॉट द टाइप, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ ऐसे। ओके, सो मैं आगे चलूँ। So there are 4 different types of the essay topics. Those can come in exam. Those can come in exam. आपके PTE के एग्जाम में आ सकते हैं। The first type of essay that can come in exam is known as advantages, advantages and disadvantages, disadvantages essay, advantages and disadvantages essay. पहला essay कहलाता है advantages and disadvantages essay. The second essay which can come up there in exam, it can be the problems and solutions essay. Problems and solutions essay. The third type of essay topic that can come in PTE exam is known as the opinion essay. The opinion essay. मैं अभी इन सबको एग्जाम्पलीफाई भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को और फर्दर क्लैरिटी हो जाए। Number 4, the fourth topic of essay that can come over in exam is agree or disagree essay. So essay topics can be 4 in exam: advantages and disadvantages essay. That means that if क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मैं उर्दू में इसको अगर बताऊं कि आजकल कंप्यूटर का यूज खासा पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया में और बच्चों में भी। आपके ख्याल में बच्चों में कंप्यूटर के यूज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सो इट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे। आजकल मोटापा पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, खास करके अमीर मुल्कों में। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हो सकती हैं इस मोटापे की, एंड what can be the solutions of it? It is problem and solution essay. Opinion essay. कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर आवाम का बड़ा पैसा लग जाता है। चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो आवाम के लिए फ्री ऑफ कास्ट कर देनी चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है उस बारे में? सो इट इज नोन एज एन ओपिनियन essay. Number 4 is agree or disagree essay. आजकल कहा जाता है कि जो शूटिंग इवेंट्स होते हैं या जिसमें इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, ये जो शूटिंग इवेंट्स हैं ये इस वजह से हो रहे हैं कि लोगों के पास बंदूकें घरों में रखी हुई हैं। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? एक और सवाल बन सकते हैं, क्राइम के बारे में कहा जाता है कि क्राइम इज एन अनकंट्रोलेबल ऑफेंस। क्राइम एक अनकंट्रोलेबल मामला है, ऑफेंस है या प्रैक्टिस है। आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? सो दीज आर द 4 डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ essay which can come up in the exam of PTE. अब अंडरस्टैंड इस बात को करना है कि PTE का essay जो है वो एग्जामिनर मार्क किस बेस पे करता है। सो हाउ इट इज मार्क्ड इन एग्जाम? सो essay मार्किंग, मार्किंग ऑफ essay, मार्किंग ऑफ essay इन एग्जाम। आपकी जो PTE का जो essay है, essay इन एग्जाम, आपके जो PTE के essay भाई हैं, यहाँ पे मैं PTE लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। So I'm not talking about IELTS essay exam. I'm purely talking about the PTE essay exam because IELTS essay is very different than this one. So marking of essay in exam. Essay की जो marking की basis है ना बेटा PTE exam में, नंबर 1 जो पहला marking base है, it is your grammar. It is your grammar. The first marking base is the grammar. अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में what examiner looks into, examiner sees that how good you are in your lexical resource, how good you are in your lexical resource। बल्कि lexical resource को मैं आगे अलग से टॉपिक में डाल दूंगा। how good you are in your tenses। हम जब बात करते हैं टेंसेस की तो इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की भी, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। तो हम बात कर रहे हैं इन 4 टेंसेस की और इनकी फिर चारों कंडीशंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिंपल कंडीशन की भी, हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस कंडीशन की भी, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंडीशन की भी, और हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंडीशन की भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंडीशन। सो हम जब बात करते हैं
हमारे एसे की, तो हम जब बात करते हैं उसकी एवेल्युएशन की, तो मैं कह रहा हूँ कि एसे की मार्किंग के जो चार से पांच क्राइटेरियाज हैं पीटी एग्जामिनर के। पहला क्राइटेरिया क्या कहलाया? ग्रामर। इन ग्रामर एग्जामिनर सीज हाउ गुड वी आर इन द टेंसेस। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, टॉक अबाउट द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस, एंड देन इसकी चारों कंडीशन सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड द perfect continuous. So what I'm saying that examiner will evaluate us in number one, the grammar, and in grammar, the first thing is your tenses. Clear? Number one. Number two, in the same criteria, examiner in the same marking base of grammar, the second thing which examiner looks into is our sentencing. Our sentencing or our sentence structure. If we talk about the sentences, तो तीन तरह के sentences commonly हम बात करते हैं. Number one is known as a simple sentence. ये एक छोटा सा sentence जिसको हम end up करते हैं full stop. For an example, I like tea and full stop. Kiran likes coffee, full stop. It is known as a simple sentence. The second sentence is known as a compound sentence. Compound sentence when we combine two small sentences. For an example, I like tea, full stop. Kiran likes coffee, full stop. ये दो छोटे sentences हैं. अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, आई लाइक टी वाइल किरण लाइक्स कॉफी, तो मैंने वाइल का ब्रिज लगा के दोनों को आपस में जोड़ दिया है, तो इट इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस. थर्ड वन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अगर हम एक कंडीशन भी साथ ऐड कर देते हैं, फॉर एन एग्जांपल आई लाइक टी बिकॉज आई डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफी, तो मैंने एक कंडीशन भी ऐड कर दी है. इट इज व्हाट नोन एज द कॉम्प्लेक्सिंग सेंटेंस. सो मैंने सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कर दिया. एक चौथी टाइप होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन मैं आपको बातों में या वर्ड्स में उलझाना नहीं चाहता हूँ. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामर का जो पोर्शन है, जो ग्रामर का मार्किंग क्राइटेरिया है, उसमें कॉमनली एग्जामिनर्स क्या देख रहे होते हैं? नंबर वन, टेंसेज. नंबर टू, योर सेंटेंसेज. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी सेंटेंस शुड बी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. आई एम सेइंग if we are working on up to 50% of the sentences as a simple sentence, there's no problem. If we are using 40% of the sentences as a compound sentence, absolutely okay. And we talk about 10% of the sentences, these must be written in a complex format, is absolutely stunning and wonderful. There is no problem at all. So 50, 40 and this should be the bifurcation on the division of the simple sentences, compound and complex sentences, and absolutely okay. एक बात याद रखिए, सुनने वाले भी सुनने और आप भी बता. देखिए, मैं बनाऊंगा टेम्पलेट, पर जो मैं टेम्पलेट बनाऊंगा वो टेम्पलेट नहीं होगा जो नेट पे रोल रहा है. मैं वो टेम्पलेट बनाता हूं जिसमें आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं ग्रामर, मैं वोकैबुलरी और फॉर्म के रिस्क को मिनिमाइज कर दूं जो मैंने अभी आगे लिखने हैं मार्किंग करके. और मैं कोशिश करता हूं कि जो यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स हैं मैं अपने टेम्पलेट में कवर कर लूं ताकि आप लोगों को एग्जाम में लिखते हुए भूल ना जाए. यू हैव टू पुट योर आइडियाज इनटू दैट टेम्पलेट. तो होगा क्या, आधे वर्ड्स मेरे टेम्पलेट के हो जाएंगे, आधे आपके, तो हर रिस्क आधा आधा हो जाएगा और मार्किंग के चांसेस मेरे ख्याल में बढ़ जाए. तो देखिए आगे चलिए. So now sentencing. Third thing is what examiner looks into the grammar criteria is the spell. Third one is the spell. Spelling जो है वो आपका examiner जो है वो देखता है, and he is very curious about the spelling criteria as well. Is it clear? PTE में rather आपका जो examiner है वो spelling के लिए अलहदा separate marking base को रखता है. Separate marking base को रखता है, यानी कि अगर आपके एग्जामिनर ने रखा है मार्किंग बेस रखा है पहला ग्रामर, तो दूसरा मार्किंग बेस में अलग से लिख देता हूं, he is that much curious about these spellings कि उसने इसको as a separate marking criteria mention कर दिया. And what is the second marking base in PTE? That is the spelling. The third marking base is the lexical resource. लेक्सिकल रिसोर्स, तो इसको एक दफा समझ में आ जाए लेक्सिकल रिसोर्स क्या, तो फिर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख दूंगा. लेक्सिकल कहते हैं डिक्शनरी को, रिसोर्स कहते हैं डिक्शनरी में दिए हुए रिसोर्स को. सो डिक्शनरी में क्या दिया होता है? डिक्शनरी में वर्ड्स दिए होते हैं. अगर हम उनके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करें तो वेरी ब्यूटीफुल वर्ड कम्स अप एंड दैट इज नोन एज वोकैबुलरी. एग्जामिनर सीज दैट व्हाट टाइप ऑफ वोकैबुलरी यू हैव यूज्ड. दो तरह की वोकैबुलरी पीटी का एग्जामिनर जो है वो अकाउंट फॉर करता है, ये मेरी बात याद रखिएगा. दो तरह की वोकैबुलरी एग्जामिनर इज वेरी टची अबाउट. नंबर वन, एग्जामिनर इज टची अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ वोकैबुलरी इज नोन एज यूनिक वोकैबुलरी. पीटीई के एग्जाम में एग्जामिनर इज वेरी टची अबाउट नंबर वन, यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स?
यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स आर नॉट द वर्ड जो कि सुपरस्टिशियस है, खुदा ना खास्ता मिस्टीरियस वर्ड्स हैं और वो जो है ना वो डायरेक्टली आ रहे हैं खला से और हम उन्हें यूज करें. इट इज नॉट लाइक दैट. Unique vocabulary words are known as the words which are not commonly used by every individual in the society in the daily routine. For an example, हम कहते हैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इंपॉर्टेंट का वर्ड हमने हर जगह पे पूरा दिन इस्तेमाल करा है, मगर अगर मैं इस इंपॉर्टेंट के वर्ड को आल्टर करके ये कर देता हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एग्जाम. अब सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट बोथ मीन द सेम थिंग, बट सिग्निफिकेंट इज वेरी अनकॉमन वर्ड and important is very common word. If we talk about important, that is not a unique vocabulary word. We talk about significant, that is. एक वर्ड है प्रॉपर. यार प्रॉपर तरीके से काम करो यार. अब ये बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम हर रोज 5 दफा सुनते हैं प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर. रोटी पकाई है मैंने प्रॉपर हंडिया पकाई है, मैंने प्रॉपर खाना खाया, मैंने प्रॉपर. हर जगह पे सुबह दोपहर शाम प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर. इफ आई यूज अ वर्ड एडिक्वेट, सो एडिक्वेट का मतलब भी प्रॉपर होता है, मगर adequate is a very very unique word that is very uncommonly used. Clear? अब उसको हम क्या कहेंगे? यूनिक vocabulary word. अब हमने जब भी बचपन से आज तक जब भी एग्जांपल कोट करनी होती है, हम एक वर्ड यूज करते हैं फॉर एन एग्जांपल. सुन सुन के हम खुद भी एग्जांपल ही बन गए. लेकिन अगर आप एग्जांपल के वर्ड यूज करें फॉर इंस्टेंस, तो आप देखें फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल मिसाल के तौर पे, बट फॉर इंस्टेंस विल बी नोन एज अ यूनिक vocabulary word. So using those words which are having the meaning of the common word but very rarely used, those are unique vocabulary words. तो examiner देखता है कि आपने अपने write-up में कितने unique vocabulary words को use किया. Along with that, what was the percentage of academic vocabulary? तो आपका examiner जो PTE का है ना, वो PTE का examiner percentage variate कराता है. देखता है in your total write-up how many words were the common vocabulary, common academic vocabulary words, and how many words were the unique vocabulary words. So more you go up in the unique vocabulary words, more you go in your score. So if your unique vocabulary words are at about 50% or above 50%, 50 से 55 तक अगर आप यूनिक vocabulary words यूज कर रहे हैं, बाकी सारे आपके academic vocabulary words हैं, believe me, you are in an absolute wonderful condition to take 100% marks in essay. जीपीटी के एग्जामिनर को मैं दाद देता हूँ, अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपको पूरे नंबर देता है. आर्ट्स का एग्जामिनर इज वेरी टफ इन दिस वे. आर्ट्स के राइटिंग के एग्जामिनर ऐसे में पूरे नंबर लेना इज नियर टू इम्पॉसिबल. It's near to impossible. I've taken 9, but believe me, it is 9, 9, 9 and 8.5 in writing. So I'm telling you, to take 9 band in IELTS is not an easy way out. Clear? So मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि राइटिंग के एग्जाम में आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पीटीई एग्जामिनर. पीटीई का एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा if you perform adequately according to the requirements of the examiner. So vocabulary, unique vocabulary words अलग होंगे और जो academic vocabulary words हैं वो अलग काउंट करता है वो आपके एग्जाम में. सो थर्ड मार्किंग क्राइटेरिया क्या कहलाया? vocabulary. द फोर्थ मार्किंग क्राइटेरिया, चौथा जो मार्किंग बेस है जिसको एग्जामिनर एग्जाम में देख रहा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, इट इज नोन एज कंटेंट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट डू यू मीन विद द कंटेंट? एग्जामिनर ने पूछा कि आपने लिखा क्या? एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यूज इन चिल्ड्रन. अब आपने जो बात करनी है वो कंप्यूटर यूज पे करनी है और आपने जिसको फोकस करना है दैट इज चिल्ड्रन. If you talk about computer, a lot you have written 250 words on computer, but you did not address the children. That means you are not working on the content. The content is not computer. The content is use of computer by children. So your all words and ideas should relate to this specific thing. अब अगर आप एडवांटेज लिखेंगे और आप कंटेंट पे फोकस करेंगे तो आप बच्चों के लिए एडवांटेज लिखेंगे तो आप कहेंगे इट इज टेक्नोलॉजी अवेयरनेस सिंस द चाइल्डहुड. मैं मिसाल दे रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस सिंस द चाइल्डहुड. लेकिन अगर आप बड़ों के लिए ऐसे लिखेंगे कंप्यूटर के एडवांटेज, तो वहां पे आप लिखेंगे ईज ऑफ हंटिंग जॉब्स फॉर एन एग्जांपल. सो देखें ना कितना फर्क पड़ गया. अब अगर आप बच्चों के लिए ऐसे लिख रहे हैं और आप पहला एडवांटेज लिखते हैं ईज ऑफ हंटिंग जॉब्स, दैट मींस यू आर नॉट फोकसिंग ऑन किड्स. कंटेंट इज नॉट मैचिंग, यू विल नॉट गेट मार्क्स. एप्रोप्रिएसी नहीं है कंटेंट. सो कंटेंट का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने जो आपसे मांगा है उससे रेलेवेंट ही एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उससे रेलेवेंट ही वर्डिंग होनी चाहिए. मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? So content is the fourth or the fourth marking criteria. The fifth one and the last one here is the formal structure. Formal structure. Formal structure. इसको जो कई हमारे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, अल्लाह इंस्ट्रक्टर सारे अच्छे होते हैं,
कई हमारे अच्छे ट्रेनर्स जो हैं इसकी जगह वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, FORM, सो वो भी ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर भी ठीक है, FORM, फॉर्म मींस फॉर्मल स्ट्रक्चर। सो व्हाट एग्जामिनर वांट्स अस 200 प्लस करना। हमने जब वर्ड लिखने हैं दिस शुड बी 200 प्लस, बट दिस शुड बी नो लॉन्गर देन, इट शुड बी लेसर देन, नो लॉन्गर देन, लेसर देन 300 मार्क। सो दो बातें हैं, एक 200 से थोड़ा नहीं होना चाहिए और 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज व्हाट द एसेस 5 formal marking criterias, and on the ground of these 5 marking criteria examiner gives us the marks in PG exam. So I'm going to revise the whole topic, what the topic is. हमारे टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है that number 1, essay in PTE exam can be or should be more than 200, lesser than 300 words. Number 1. Number 2, essay can be of 4 different topics and one out of them will be in exam. One out of them will be in exam. And number 1, the first topic is advantage, disadvantage essay. Number 2 is the problem solution. Number 3 is the opinion. Number 4 is agree or disagree. Is it clear or not? मेरी बात समझ में आती? तो ये हैं हमारे 5 essays और इनके जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो नंबर 1 is your grammar, number 2 is your spelling, number 3 is your vocabulary, number 4 is your content, and number 5 is your formal structure. 200 से ज्यादा 300 से कम. Is it fine? So now इसका मतलब ये है कि जब हम essay की बात करते हैं तो essay में अल्लाह ना करे हमारे नंबर ना आए, उसके लिए जो रिस्क्स हमें नजर आते हैं, रिस्क इन राइटिंग स्कोर, हमें जो रिस्क्स नजर आते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना वुड बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। सो जो रिस्क्स हैं ऐसे राइटिंग में, नंबर 1, द फर्स्ट रिस्क that students may face in exam, the first risk that students can face in exam is the risk of grammar. So we need to work on it. हम इसको मिनिमाइज करेंगे। इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? टेम्पलेट के जरिए। जब सर खुद टेम्पलेटिंग कराएंगे और खुद सारे एसएस की प्रैक्टिस कराएंगे तो यू विल कम टू नो दैट हाउ वी हैव टू वर्क ऑन, हाउ वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस सो दैट हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता रहे। इज इट क्लियर? The second marking base was spelling. Again, sir is going to design the template, and this template will help us to reduce the risk of spelling. अगर मैं आधे words भी template में enter कर देता हूँ, आधे, half of the words are entered into the template, that means that we are going to reduce the risk of the spelling by 50% in our final exam. Vocabulary. Again, vocabulary का जो risk है, sir will reduce that risk by the help of the template. So I will be trying my level best to use maximum unique vocabulary words in the template so that आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। Is it clear? आगे चलिए। Then is the content. Content का रिस्क मिनिमाइज नहीं हो सकता है। कंटेंट का रिस्क मिनिमाइज इससे नहीं हो सकता क्योंकि आप अगर कंटेंट का रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपको 4 टेम्पलेट्स चारों हिस्सों के लिए अलग-अलग बनाने पड़ेंगे और फिर उसमें आप उनको रटा मारेंगे। सो आई विल नॉट वर्क ऑन इट। इंशाल्लाह इसमें सर विल गाइड इट हाउ वी विल मेक इट। इसको हम खुद, मैं गाइड करूंगा कैसे बनाना है, इसको अपने टेम्पलेट के अंदर इंसर्ट करेंगे। सो दिस रिस्क आई विल टेक ऑन द पार्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं 4 टेम्पलेट बना के देता हूँ और आप उनको रटा मार लेते हैं तो जरा सा भी दाएं बाएं होता गया ऐसे अपने टॉपिक से तो यू पीपल विल लूज द मार्क्स बिकॉज आपकी ग्रिप नहीं होगी ना जब रटा लगेगा। तो आगे चले। नंबर 5 इज द फॉर्म, एंड अगेन फॉर्म के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सर इज यूजिंग द टेम्पलेट, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गाइड यू टू वर्क ऑन एसे ऑफ अबाउट 270 to 280 वर्ड्स। असल में 270 to 280 वर्ड्स का लिखना इतना बड़ा प्रॉब्लम शायद ना हो, बट एक्चुअली टॉप पे वापस जाऊंगा। The essay that we have to work in PTE for 25 marks, this essay has only 20 minutes time to work on. सिर्फ 20 मिनट्स हैं इसके लिए। तो सिर्फ essay लिखना नहीं है, उसको 20 मिनट में लिखना। अब सिर्फ 200 से 300 वर्ड्स नहीं है, वो 200 से 300 वर्ड्स 20 मिनट में है। So if you ask सजीशान क्या करें, हम अगर 20 मिनट को देखें, इंपॉर्टेंट 20 मिनट है या इंपॉर्टेंट 300 वर्ड्स हैं, आई विल से इंपॉर्टेंट 20 मिनट्स है, बिकॉज आपको 16 मिनट में अपनी राइटिंग खत्म करनी है। अगर आपने राइटिंग खत्म ना की 16 मिनट में तो आप रिव्यू नहीं कर सकते। अगर रिव्यू नहीं कर सकते तो टाइपिंग के दौरान होने वाली सारी एरर्स मिस्टेक बन के सबमिट हो जाएंगे और सबके नंबर कट जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो इंपॉर्टेंट इज कि हम
तवज्जो किस पे दें? टाइम पे। ओके, सो वी कैन कंप्रोमाइज ऑन सम ऑफ द वर्ड्स। हम 270 के बजाय 280 के बजाय 220 लिख लें, 230 लिख लें, दैट इज बेटर। बट रिव्यू के बगैर हमने अपने ऐसे को नहीं छोड़ना। मेरी बात समझ में आ रही? तो इट इज व्हाट द रिस्क जिनको हम एड्रेस कर रहे होंगे, मैंने लिखा है कैसे एड्रेस करें। आगे चलता हूँ। सो स्टेप फॉर राइटिंग द एसे, स्टेप्स फॉर एसे राइटिंग, स्टेप्स फॉर एसे राइटिंग। हम जब पीटीई का ऐसे लिखेंगे तो हम कितने स्टेप्स को फॉलो करेंगे? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टू बी डन बिटवीन मी एंड माय स्टूडेंट्स। द फर्स्ट थिंग इज, हम ऐसे राइटिंग में जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल फॉलो इन आवर ऐसे राइटिंग, द फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1, एंड दिस स्टेप इज नोन एज माइंड मेकिंग। माइंड मेकिंग। अब व्हाट इज माइंड मेकिंग? एक टॉपिक आ गया, एक टॉपिक आया, you please, if it is advantage and disadvantage, if it is problem and solution, and जो भी टॉपिक है, please identify the topic first। सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करें, ऐसे लिखना है जिसपे, ताकि आपका कंटेंट खराब ना हो। सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करें। क्यों टॉपिक आइडेंटिफाई करना जरूरी है? ताकि आपका जो कंटेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। आपको पता हो कि अलाइन कंटेंट में लिख रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछी है। नंबर 2, टॉपिक के बाद वी नीड टू वर्क ऑन द फोकस। माइंड मेकिंग में हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? टॉपिक क्या, एंड देन वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फोकस। फोकस से क्या मुराद है? किस पर टारगेट किया हुआ है? ऐसे फॉर एन एग्जांपल, ओबेसिटी इन द रिच कंट्रीज। ओबेसिटी अगर टॉपिक है तो रिच कंट्रीज पर फोकस किया हुआ है ऐसे। सो रिच कंट्रीज है वो फोकस कहलाएंगी। तो अगेन दिस टॉपिक एंड द फोकस बोथ ऐड टू द कंटेंट। जितना टॉपिक और फोकस को आप अलाइंड रखेंगे, उतना ही ज्यादा कंटेंट में आपके मार्क्स एनहांस रहेंगे। क्लियर है नॉट? सो माइंड मेकिंग में हम टॉपिक और फोकस को आइडेंटिफाई करने के बाद, नंबर 3, वी मेक 2 to 3 ideas of the sides of essay। sides of essay, साइड्स ऑफ ऐसे से क्या मुराद है? देखें, अब फॉर एन एग्जांपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे है। तो एक साइड क्या है आपके ऐसे की? एडवांटेज। ये क्या कहलाएगा? साइड 1। इट विल बी साइड 1। और जो आपका डिसएडवांटेज है वो क्या कहलाएगा? डिसएडवांटेज विल बी नोन एज साइड नंबर 2। हम जब भी अपना ऐसे लिखेंगे, हम सब भी ऐसे लिखेंगे, हम सबसे पहले माइंड मेकिंग करेंगे, टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे, फोकस आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम 2 से 3 आइडियाज हर साइड के लिख लेंगे अपने रफ पेपर पर, जो हमें एग्जाम में रफ शीट दी होती है, एक्स्ट्रा शीट विद बॉल पॉइंट। अगर फॉर एन एग्जांपल एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो हम 2 से 3 एडवांटेज लिख लेंगे, 2 से 3 डिसएडवांटेज लिख लेंगे। कोशिश करें कि जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखें तो इसमें आइडियाज के साथ उनके इम्पैक्ट्स भी लिख लें। क्या मतलब प्लस इम्पैक्ट नहीं? जब आप इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसका असर, इस फायदे का असर क्या होगा? फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं कि बच्चों में कंप्यूटर यूज करने का जो पहला एडवांटेज है वो आईटी लिटरेसी है या टेक्नोलॉजी लिटरेसी है चाइल्डहुड से। तो भाई इस चाइल्डहुड की लिटरेसी को करना क्या है? तो फिक्रा पूरा तब होगा जब हम कहेंगे कि पहला एडवांटेज ये है कि बच्चों में टेक्नोलॉजी लिटरेसी बचपन से ही होती है, जो उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए फ्यूचर में काम आएगी और उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए फ्यूचर में बड़ी हेल्पफुल होती है। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो अपने एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज, अगर वो ओपिनियन की कोई साइड्स हो या वो आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन हो, आप जब भी एक आइडिया लिखें तो कोशिश करें कि उसको आइडिया को इम्पैक्ट के साथ लिखें, पूरे सेंटेंस में लिख लें बेशक, बिकॉज हमें सेंटेंस ही उठा के टाइप करना होगा अगर आप रफ पेपर पर ठीक काम कर लें। सो एडवांटेज अगर साइड 1 है तो उसके 4 आइडियाज, डिसएडवांटेज साइड 2 है उसके 2 से 3 आइडियाज। सॉरी, अब अगर ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे है तो प्रॉब्लम के आप 2 to 3 पॉइंट्स बना लेंगे। क्लियर है नॉट? 2 to 3 पॉइंट्स है ना, और फिर इसके साथ इसके इम्पैक्ट भी। तो एक एक सेंटेंस पूरा लिखते जाएंगे, आइडिया इम्पैक्ट दोनों कवर होते जाएंगे। इसका मतलब है कि 2 to 3 पॉइंट हमें किसके बनाने पड़ेंगे? फिर सॉल्यूशंस के। ये इसके हम 2 to 3 पॉइंट्स बनाएंगे। और अब आपको बात समझ आ गई है जो सर कहना चाह रहे हैं। हम इस फेज पर जिसको हम, या इस स्टेप में जिसको हम माइंड मेकिंग कह रहे हैं, वी विल स्पेंड ओनली 2 मिनट्स। हम सिर्फ 2 मिनट्स लगाएंगे। एंड दिस विल कंटेन नो पैराग्राफ। इसका कोई पैराग्राफ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही? हम लिखेंगे नहीं, हम तो रफ शीट पे काम करें। आफ्टर दिस वन
we enter into the second step. And this step number 2 is known as introduction writing. It is known as introduction writing. इंट्रोडक्शन राइटिंग सर को टेम्पलेट आल्दो के बनाएंगे, मगर इंट्रोडक्शन राइटिंग पे हम लगाएंगे 2 मिनट्स। हम कितने मिनट लगाएंगे इंट्रोडक्शन राइटिंग पे, बल्कि इस पे हम 3 मिनट्स कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनेशनल राइटिंग विल राइट 3 मिनट्स। हम 3 मिनट में लिखेंगे 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ होगा इसका। वी विल राइट इंट्रोडक्शन इन द प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस में इंट्रोडक्शन को लिखेंगे एंड वी विल फॉलो 5 सेंटेंसेस अप्रोच, 5 सेंटेंसेस अप्रोच इन अ रैशनल कंडीशन। अगर ऐसे की टाइप चेंज होती है, फॉर एन एग्जांपल एग्री डिसएग्री में आप जाते हैं तो हो सकता है 4 सेंटेंसेस हो, मैं आगे जाके समझाऊंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन में क्योंकि 2-2 साइड्स हैं तो 5 सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक ऐसे फॉर एन एग्जांपल एग्री डिसएग्री आपके 2 साइड्स बनती नहीं है, या तो आप एग्री करेंगे या आप डिसएग्री करेंगे, उसकी बारी आएगी प्रैक्टिस में और भी समझेंगे हम उसको। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एग्री और डिसएग्री की 2 साइड्स नहीं बन सकती, बिकॉज आप साइमल्टेनियसली एक वक्त पर इस बात से किसी एक बात से एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते। आप या तो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो जब साइड्स कम होंगी तो ऐसे का जो सेंटेंस है वो भी कम हो जाएंगे। वो कैसे कम होंगे मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली हम जो यूज करते हैं अप्रोच इंट्रोडक्शन लिखने, इंट्रोडक्शन में वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज 5 सेंटेंसेस अप्रोच। पर 5 सेंटेंसेस अप्रोच में जो सेंटेंस नंबर 1 होता है ना, वो सर जीशान लिखवाते हैं टॉपिक और फोकस पर, टॉपिक प्लस फोकस। यानी कि अगर ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यूज इन चिल्ड्रन की बात हो रही है तो पहला सेंटेंस सर किस पे लिखवाएंगे, कंप्यूटर यूज इन चिल्ड्रन की, ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि टास्क रिस्पॉन्स यानी कि जो उसने बोला पूछा है हमसे, वी आर नोन टू दैट एंड वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट एज वेल। वो हमसे भूला हुआ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, या हमें टॉपिक की समझ ठीक आई है, सो दैट एग्जामिनर शुड नॉट थिंक ऑफ इट दैट हम एक रटा रटाया टेम्पलेट यूज करें। इट इज नॉट लाइक दैट। सेंटेंस नंबर 2, दिस विल बी ऑन साइड नंबर 1। ये साइड नंबर 1 पे होगा। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो ये कहां से होगा, एडवांटेज से। अगर ये एग्री डिसएग्री का ऐसे है तो फिर नहीं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है तो ये कहां से होगा, प्रॉब्लम से। अगर 2 आर्गुमेंट्स की ओपिनियन है तो ये आर्गुमेंट 1 से होगा। क्लियर? सेकंड सेंटेंस विल बी फ्रॉम साइड नंबर 1। द थर्ड सेंटेंस S3, दिस विल बी फ्रॉम साइड नंबर 2। ये दूसरी साइड से होगा। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज से होगा। एंड देन सेंटेंस नंबर 4 इज योर ओपिनियन। आप क्या फरमाते हैं, योर ओपिनियन। अब कल की क्लास में मैं वोकैबुलरी करवाऊंगा, एक एक वोकैबुलरी वर्ड जो हमें ऐसे के लिए चाहिए, आई विल राइट ऑन द स्क्रीन बाय माई सेल्फ इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ना करनी पड़े, सवाए इसके कि जो मैंने कहा है उसको फॉलो करना, जो मैंने कहा उसको फॉलो करने, बस नथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। सेंटेंस नंबर 5, S5। सेंटेंस 5, दिस विल बी रिगार्डिंग माई प्लान ऑफ इससे मैं इस एसे में आगे क्या करने के वास्ते जा रहा हूँ। दिस विल बी अ स्टैंडर्ड सेंटेंस फॉर एवरी एसे, लेकिन 12 जब कल टेम्पलेट बनाऊंगा तो उसमें लिखूंगा इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज द एक्सप्लेनेशन राइटिंग। एक्सप्लेनेशन राइटिंग, एक्सप्लेनेशन राइटिंग में वी विल यूज 2 पैराग्राफ्स। हम 2 पैराग्राफ्स यूज करेंगे। नंबर 2, हम इस पर लगाएंगे टोटल 10 मिनट्स। हम 2 पैराग्राफ्स पर मिला के 10 मिनट लगाएंगे। इसमें जो पैरा 1 होगा ना, पैरा 1, दिस पैरा 1 विल बी ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट लगाएंगे। इसमें हम लिखेंगे, एक्सप्लेन किसको करेंगे, साइड 1 को। 2 साइड्स है ना हमारी, साइड 1 एंड 2, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसमें क्या आएगा, एडवांटेज। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है तो इसमें क्या आएगा, प्रॉब्लम्स। क्लियर है नॉट? साइड 1 को एक्सप्लेन करेंगे, 5 मिनट्स लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, और हम इस साइड के 2 to 3 आइडियाज को लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, 2 एग्जाम्पल्स। हम 2 एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे अपने आइडियाज। इज इट फाइन बच्चों? आगे चलिए। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2 यानी कि हम जो दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे एक्सप्लेनेशन का, अगेन दिस पैराग्राफ विल टेक अवर 5 मिनट्स। 5 मिनट लगाएंगे इस पर भी। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे किसको, साइड नंबर 2 को। यानी कि अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो ये डिसएडवांटेज का होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है तो ये किसका होगा, सॉल्यूशन का। अगर ये 2 आर्गुमेंट्स ओपिनियन से है तो इसमें आर्गुमेंट नंबर 2 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही? अगर एग्री डिसएग्री से है तो उसके लिए साइड ये होती है, क्या होगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम इसको भी जब लिखेंगे तो इसमें भी हम जो है ना वो
साइड 2 का एक्सप्लेन करेंगे, 2 to 3 आइडियाज आएंगे यहाँ पे, और फिर होंगी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस साइड एज वेल. We enter into step number, we enter into step number 4. Step number 4, and this step is known as conclusion writing. Conclusion writing. In conclusion writing, we spend only 2 minutes. हम सिर्फ 2 मिनट, only 2 minutes. हम 5 small sentences को यूज करेंगे. 5 small sentences. पहला सेंटेंस जो हम यूज करेंगे दैट विल बी कंक्लूडिंग द टॉपिक. अब आगे जाके जब मैं कल वोकैबुलरी कराऊंगा तो मैं इसके 5 अल्टरनेटिव्स भी लिखवाऊंगा, लेकिन बहरहाल मैं समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ. द फर्स्ट सेंटेंस विल बी कंक्लूडिंग द टॉपिक. द सेकंड सेंटेंस विल बी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन देयर विल बी one sentence from side 1. Number 4 will be however. Sentence 5 will be from side number 2, and it's all over with the writing of the whole essay. इसके ऊपर हमारा जो होगा वो एक पैराग्राफ होगा, 1 पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ हम लिखेंगे. सो 2 मिनट का टाइम लेंगे और एक सिंगल पैराग्राफ लिखेंगे. आगे चलिए, स्टेप नंबर 5 जो हम essay में राइटिंग में यूज कर रहे होंगे, दिस स्टेप नंबर 5 इज नोन एज रिव्यू. एक बात याद रखिएगा, रिव्यू करने वाले और ना करने वाले के स्कोर में कम से कम 20 का फर्क होता है. अगर मैं आर्ट्स में लोगों को कहता हूँ कि 2 बैंड का फर्क पड़ जाता है अगर आप लोग रिव्यू कर रहे हैं और आप रिव्यू नहीं कर रहे, बिकॉज आपने लिखने में कभी आपसे स्पेलिंग की गलती हो, ऐसा नहीं हो सकता. स्पेलिंग की गलती ना हो, नहीं हो सकता. कभी कोई पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कमा ना रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता. आपसे आर्टिकल्स मिस हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब मिस हो सकता है, फॉर्म गलत लिखी जा सकती है. आप रिव्यू में वो सारा कुछ करेक्ट करते हैं. और अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे तो वो जितनी मिस्टेक्स आपने की हैं वो सारी मिस्टेक्स जो हैं, वो सारे के सारे एरर्स जो हैं, वो मिस्टेक बन के सबमिट हो जाते हैं, एंड वी लूज द नंबर्स इन आवर एग्जाम. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द होल एसे राइटिंग. आई एम टेलिंग यू. मेरी बात समझ में आ रही? सो हम रिव्यू पे टोटल वी स्पेंड 3 मिनट्स. हम 3 मिनट्स लगाते हैं रिव्यू पे. देयर इज नो पैराग्राफ, इसका कोई पैराग्राफ नहीं होता. ठीक है जी. और हम करेक्ट करते हैं, वी करेक्ट ऑल, हम सब कुछ करेक्ट करते हैं. क्या करेक्ट करते हैं? नंबर 1, इफ देयर इज सम ग्रामर एरर, if there is some vocabulary error, if there is some form error, if there is some punctuation error, हम सबको करेक्ट करते हैं while we review. इसको देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, हम सबको करेक्ट करते हैं. इस तरह से हमने अगर टोटल, मैं यहाँ पे हम पैराग्राफ्स बनाऊं, पैराग्राफ्स इन एसे, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ्स बनाऊं तो पैराग्राफ्स बनाते हुए नंबर 1 पहला पैराग्राफ जो हम यूज करते हैं that is introduction. वो क्या कहलाता है? Introduction. The second paragraph that you will make in exam will be known as explanation. Explanation, और साथ लिख देता हूं side number 1. The third paragraph is also known as explanation, and this is known as side number 2. And the fourth paragraph is known as conclusion, और कंक्लूजन में इट इज द 4th पैराग्राफ. अब अगर मैं इनके साथ टाइम लाइन भी लिखूं जो मैंने ऊपर लिखी थी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, तो मैं जब इसके साथ टाइम लाइन लिखूंगा तो आपने इंट्रोडक्शन लिखना है 3 मिनट्स में. ठीक है जी. जब हम इंट्रोडक्शन लिख के फारिग होने चाहिए तो दिट विल बी 3 out of 20 मिनट्स टोटल. जब हम एक्सप्लेनेशन 1 लिख के फारिग होए ना तो उस वक्त हमने इस पे 5 मिनट लगाने हैं, तो वी विल बी एट 8 out of, बल्कि मैं यहाँ पे इस पे अलग लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. इसके बाद मैं लमसम भी लिख दूंगा. 5 out of 20 मिनट्स हमने एक्सप्लेनेशन 1 पे लगाने हैं. जब हमने एक्सप्लेनेशन 2 लिखनी है तो एक्सप्लेनेशन 2 लिखते वक्त फिर हमने 5 out of 20 मिनट्स इस पे लगाने, 5 मिनट लगाएंगे. और जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम कंक्लूजन के ऊपर लगाएंगे 2 out of 20 मिनट्स. तो टोटल जो नेट राइटिंग टाइम है हमारा, नेट राइटिंग टाइम वो कितना बन जाएगा? दैट विल बी 3 plus 5 plus 5 plus 2 minutes, and this will make total 15 minutes writing time. अब जो इसके अलावा मिनट बच गए उनका क्या होगा? 5 मिनट्स हम लगाएंगे इनिशियल माइंड मेकिंग पे. हम माइंड मेकिंग पे लगाएंगे
2 मिनट्स, और बेटा हम लगाएंगे रिव्यू पे 3 मिनट्स, और इस तरह से हमारे 15 राइटिंग मिनट्स एंड 5 मिनट्स फॉर द इनिशियल माइंड मेकिंग एंड 3 मिनट्स फॉर द रिव्यू। तो इस तरह से हम मुकम्मल कर लेंगे जो है ना वो अपने एसे को इन अ गिवन टाइम। तो जब हम एसे को गिवन टाइम में मुकम्मल कर लेंगे, आई वाज वेरी इफेक्टिव इन गेटिंग द कंप्लीट मार्क्स इन एसे। वी हैव एनी क्वेश्चन, मैं उसको जरूर आंसर करना चाहूंगा, और मैं दोबारा एक क्विक रिकैप करवा रहा हूँ ताकि आपका पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाए और कोई चीज ऐसी ना हो जो आपको कंफ्यूज करे या भूल जाए। I told that in PTE essay writing, with one question there will be 25 marks. All 25 marks will go towards your writing exam. There can be 4 different type of essays, means 4 different type of topics of the essay in exam: advantage, disadvantage, problem solution, opinion, and agree, disagree. 20 minutes is the total time. Marking criteria जो है आपके, पहला है number 1 is the grammar. पहला marking based grammar कहलाता है. The second marking based examiner will look into is known as your spelling. Third one is vocabulary. Fourth one is contenting. Number 5 is the form. जो रिस्क है स्कोरिंग में, पहला रिस्क ग्रामर का होगा, दूसरा स्पेलिंग का, तीसरा वोकैबुलरी, कंटेंट, फॉर्म का, पर इनमें से 4 हम रिड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिजाइनिंग द टेम्पलेट। जो 5 स्टेप्स हैं ऐसे राइटिंग के, these 5 steps are: number 1, step number 1 is known as initial mind making. Step number 2 is known as introduction writing. Step number 3 in your essay writing is known as your explanation writing. And an explanation, we have 2 paragraphs. Explanation 1 for side 1 para 1 mein, and explanation 2 means side 2 in paragraph number 2. Step number 4 is conclusion writing. Conclusion writing का जो स्टेप है वो चौथा स्टेप होगा हमारा। एंड पांचवा एंड फाइनल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसको हमने बिल्कुल अपने ज़हन से कभी नहीं निकालना, दैट स्टेप इज नोन एज द रिव्यू। और इस तरह से 5 स्टेप ऐसे राइटिंग के पूरे होते हैं। पैराग्राफ ऐसे के 4 होंगे। पहला पैराग्राफ कहलाएगा जिसको हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा एक्सप्लेनेशन, और चौथा पैराग्राफ किस चीज का होगा, कंक्लूजन का। तो 4 हम लिखेंगे पैराग्राफ्स। टाइमलाइन ये है कि इंट्रोडक्शन के लिए हमने मुख्तस किए हैं 3 मिनट, हमने इंट्रोडक्शन के लिए मुख्तस किए हैं 3 मिनट, हमने 5 मिनट लिखे हैं एक्सप्लेनेशन के 2 पैराग्राफ्स के लिए, और 2 मिनट कंक्लूजन। 15 मिनट का हमारा राइटिंग टाइम है। माइंड मेकिंग इनिशियल जो हम करेंगे अपने आइडियाज को निकालने के लिए अपने एसे के अंदर गिवन चीजों के, 2 मिनट्स, एंड रिव्यू 3 मिनट्स। इस तरह से हम 20 मिनट्स का टोटल टाइम जो है उसको एलोकेट करेंगे। इसी की बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसी की बेस पे इंशाल्लाह हम एग्जाम देंगे, इसी के बेस पे सर टेस्ट भी लेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। If there is any question, I will be happy to answer any of the questions from any of the students.